Dear children, today we are going to start part 2 of Be the Lighthouse. Lighthouse means create light for others, make places for others, discriminate between good and bad, and not doing anything which is not right for you or right for others. Now, in this story also, you will be learning about this how one lady could discriminate between right and wrong, and she saved many lives and allowed people, these soldiers, to enjoy their Christmas Eve. True life story from Burghausen, Germany. Sharing a Christmas meal. Sometimes, right in the heat of battle, sympathy and simple human kindness breaks through. Humanity is at the door knocking. कभी कभी युद्ध के घोर कठिन समय में भी इंसानियत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है. In the last days of the Second World War, Nazi's dictator Adolf Hitler launched one final offensive against Allies. जो एलाइज थे जहां जिसमें यूएस की, यूके की और रशियन की सेनाएं मिलकर जर्मन सेनाओं का विरोध कर रही थी, ऐसे में जर्मन्स ने आखिरी अटैक किया. In the meantime, in a small cottage on the German Belgian border, a 12-year-old boy and his mother were dreaming of a spacious home with a flower garden. जब लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा है, ऐसे में 12 साल का बच्चा और उसकी माँ बैठकर सपने ले रहे हैं, जब शांति होगी तो हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा जिसमें फूलों का बगीचा होगा. Their dreams of bliss and peace were shattered. उनके ये सपने टूटकर चकनाचूर हो गए. When 3 American soldiers arrived at their front door, one with serious wounds. जब 3 अमेरिकन जो शत्रु थे उनके सिपाही उनके दरवाजे पर आए, जिनमें से एक बुरी तरह घायल था. These Americans were armed. इनके पास हथियार थे, लेकिन वो desperate थे और freezing to death. ठंड के मारे कांप रहे थे. For Germans under the Nazi regime, sheltering enemy troops was a crime with severe punishment. उस समय किसी भी जर्मन का शत्रु के सैनिकों को घर में सुरक्षा देना बहुत बड़ा अपराध था और उन्हें भयानक दंड दिया जा सकता था. Fortunately, this German woman didn't think much about politics or war. दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य हुआ कि इस स्त्री ने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया. It was Christmas Eve, a time for peace and love. क्योंकि उसने सोचा ये क्रिसमस की शाम है और ये प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है. She invited them in and began to tend their wounds. उन्हें अंदर बुलाया और उनके घावों को धोने लग गई. Then there was another knock at the door. अब तभी एक और लोग आए जिन्होंने दरवाज़ा खटखटा दिया. 4 Nazi soldiers had arrived. अब उसके लिए बड़ी परेशानी हो गई. 3 तो अमेरिकन बैठे हैं और 4 नाजी आ गए ऊपर से. द मदर न्यू दे कुड बी शॉट फॉर वायलेटिंग द रूल्स. अब उसे पता लग गया कि हमको ये लोग गोली मार देंगे क्योंकि हमने कानून तोड़ा था. She took a risk and sternly माने पूरी दृढ़ता से, क्रोध से, told the lost and hungry Germans that there would be no killing that night. उसके घर में उस रात कोई मारामारी नहीं होगी, कोई हत्याएं नहीं होगी. The mother went ahead and prepared the feast with their unexpected goods. ये जो अचानक आने वाले मेहमान थे, उनके लिए वो शानदार भोजन बनाने में जुट गई. In the morning, the German soldiers directed the Americans back to their lines, telling them how to avoid all the dangers of life. आप देखिए कैसे उनके विचार बदल गए. जिन्हें मारना चाहिए था, जिनकी हत्या करने आए थे, उन्हीं सिपाहियों को सुरक्षा का मार्ग बता रहे थे. The story spread after the boy Fritz Winken grew up and spoke with the world famous magazine Reader's Digest. जब रीडर डाइजेस्ट में उसका इंटरव्यू छपा, तब पता चला कि ये घटना घटित हुई थी. In 1995, Fritz found one of the soldiers who had separately been telling the story to everyone he met for years. और तब उसने उसकी मुलाकात उनमें से एक सिपाही से हो गई जो उसके घर में उस रात ठहरे थे, जो अपनी तरह से इस घटना को सुना रहा था. On that night, American and Nazi soldiers really did just to sit down in the middle of the war and have a quiet Christmas dinner.
शांति से उन्होंने एक डिनर खाया और त्योहार की गरिमा बनाए रखी। काइंडनेस इज एज सिंपल एज दिस। दया करना इतनी मामूली बात है। आपको दया करने के लिए भारी भरकम तैयारी नहीं करनी है, हमेशा मन में दया रखनी है। दया धर्म का मूल है। अगर दया करते हैं तो आप धर्म का पालन करते हैं। फ्रॉम बीइंग बुलीड टू बीइंग द ग्रेटेस्ट ओलंपियन एवर। अब बुलीड जिसके को लोग टीज करते हैं, छेड़ते हैं, ऐसे डरे हुए बच्चे के स्थान पर बड़ा होकर ये ग्रेटेस्ट ओलंपियन बन गया। कैसे? एज अ किड माइकल फेल्प्स वॉज बुलीड फॉर हैविंग अ लिस्प। लिस्प होती है बोलने की एक डिफिकल्टी, जिसमें द चाइल्ड इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस सर। एस को वो सर नहीं थ बोलेगा। सपोज इफ द चाइल्ड हैज टू से सच, SUCH, such, he will be saying touch. He cannot say sir, he will say th or the. So he was teased for that. So आप भी किसी को ऐसा बोलते हुए सुनेंगे तो आप मजाक उड़ाएंगे. And similarly, his friends were also teasing him. But now he has a different kind of name calling. अब भी लोग उसको नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब उसे दूसरे नाम से बुलाते हैं. He is now crowned. Crowned माने सिर पर ताज है उसके, उसे सम्मानित किया जाता है. The greatest Olympian ever. He has a tally of 28 Olympic medals. उसके पास 28 मेडल्स हैं ओलंपिक्स के. एंड निकनेम्ड द डॉल्फिन. उसे डॉल्फिन की उपाधि दी गई है. डॉल्फिन क्यों कहा गया होगा? तैराकी के लिए. बहुत सुंदर तैरता, आप चित्र भी देख रहे हैं. एज अ चाइल्ड इट वॉज पेनफुल टू इग्नोर द बुलिंग एंड एंग्जाइटी. बचपन में उसके लिए वो दर्द सहना बहुत कठिन था. ही वॉज ऑल्सो डायग्नोस्ड विद हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. उसके अंदर एक बीमारी भी देखी गई थी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टास्क. आप अक्सर देखिए बच्चों में ये व्यवहार होता है, एक काम में उनका दिल नहीं लगता, इधर भाग उधर भाग. इसमें बुराई नहीं है, लेकिन तोड़ा तोड़ी है, दूसरे को परेशान करना है, टेंट्रम्स दिखाना है, दैन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड वी डोंट ट्रीट इट. अनफॉर्चुनेटली वी थिंक अरे बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा होता है, बट द चाइल्ड नीड्स हेल्प. सो दिस बॉय ऑल्सो नीडेड help for this. Once he even got suspended from school for fighting one of his bullies. After that, he learned to keep his composure. अब उसने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया. And challenge his frustration into success in the swimming pool. और स्विमिंग पूल में जाकर अपना सारा क्रोध इस ताकत से निकालने लग गया. अब उसको गुस्सा बाहर के लोगों पर नहीं आता था. I think these childhood incidents made me stronger going through that. मैंने बचपन में इतना कष्ट सहा, शायद मैं इसीलिए इतना परिश्रम स्विमिंग पूल में कर पाता हूँ. Phelps' improvement was so quick. At 15, he became the youngest member in the US 2000 Summer Olympics swim team. After his retirement, Phelps is now busy with his foundation that helps children on the importance of being active. You people are not active. आपको लगता है आप एक्टिव हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा दिन आप बैठकर बिताते हैं. आजकल तो आप स्कूल नहीं जा रहे, पर स्कूल में भी आप यू आर मेड टू सिट, दैट इज कंपल्सरी, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टडी. बट व्हाट अबाउट एट होम? आप घर में भी बैठे रहते हैं. यू जस्ट वांट टू सी टीवी प्रोग्राम्स or want to play video games. You don't go outside, you don't walk properly, you don't do any exercise, and you are not active. You are spoiling your health. He also could realize this thing, and he is trying to change the children's habit with his foundation. More important, sports can take you away from the bad qualities of bullying and violence. अगर आप खेलते हैं तो आप इन बुराइयों से दूर रह सकते हैं. Now they had a strong sense of right and wrong. क्या ठीक है क्या गलत है, ये फैसला वो कर पाते थे. Emperor Jahangir's wife, first example is of Noor Jahan, defied norms by openly ruling alongside her husband. उनको इस चीज़ के लिए बहुत आलोचना भी होती थी, लोग विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो दरबार में आकर अपने पति के साथ, राजा जहांगीर के साथ बैठती थी. एडवाइजिंग हिम ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स. उन्होंने बहुत सुंदर बिल्डिंग्स भी बनाई हैं. आगरा में एक भवन है एतमातुद्दौला, उसे देखिए, उसकी सारी नक्काशी, वट एवर कार्विंग इज डन ऑन इन स्टोन इन दैट बिल्डिंग वॉज एम्ब्रॉयडर्ड बाई नूर जहाँ. उन्होंने उसकी कढ़ाई करके बेल बूटे बनाए
और वही उन कारीगरों से दीवारों पर बनवाया। She received audience, even issued Nishan, a privilege reserved only for male royal members. Swami Tirunal, the Maharaja of Travancore, modernized the region with courts of justice. उसने अपने राज्य को मॉडर्नाइज कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से तारों को सितारों को देखा जाए, खगोल शास्त्र का एक ऑब्जर्वेटरी बना दिया। एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी। Warren Buffett is famous investor who treats his over 3 lakh employees as partners. Along with Bill Gates, he has pledged to give away 99% of his wealth to charity and leads a simple lifestyle. जब बिल गेट्स को आप सब जानते हैं, और उन्होंने एक नियम बना लिया है कि 100 रुपया कमाएंगे तो 99 उसमें से दान करेंगे। अब ये सब बड़े बड़े लोग इसीलिए दान कर रहे हैं, टू डू राइट थिंग्स फॉर अदर्स, दोज हु आर इन नीड, they are helping them. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee brought a telecom revolution with a new policy. New businessmen entered and the government increased its revenue. उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे सरकार की कमाई बढ़ गई, उसकी आय बढ़ गई। Michael Bloomberg took charge of New York, a damaged city after the September 11 attacks. आपको मालूम है ये एक आतंकी आक्रमण था जो उसके अमेरिका की बिल्डिंग्स को, न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स को तबाह करके चला गया था। उसने दोबारा से उसको फिर से नया करा दिया था। He opened 800 acres of outdoor sports, expanded bike lanes and established the 311 telephone number to help people. एक हेल्पलाइन चला दी जिससे लोगों को सहायता हो। Starbucks leader Howard Schultz believes business should elevate humanity. लोगों की सहायता के लिए व्यापार व्यवसाय होना चाहिए, उन्हें उनका शोषण करने के लिए नहीं। He tied up with Arizona State University so that his employees could take up ऑनलाइन कोर्सेज। अब इस प्रकार उसने ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई और अपने एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। He has vowed to hire 10,000 refugees and veterans, और उसने ये वादा किया है कि वो 10,000 ऐसे लोगों को काम देगा, जॉब देगा, जो रिफ्यूजीज़ हैं, अपने देश से बाहर भटक रहे हैं, या फिर वेटनर्स हैं जो पुराने हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन काम करना जानते चाहते हैं और टैलेंटेड हैं। तो आप देख रहे हैं हाउ पीपल इंडल्ज इन डूइंग राइट एंड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। अपने आप में फैसला कीजिए। व्हेन यू आर ऑल्सो देयर टू डिसाइड, इट इज़ योर डिसीजन टू थिंक and find out what is right for you.